So continuing in part 2 of the video, let's move forward. So Supreme Court has clearly said कि curbs जो भी impose किए गए हैं fireworks के ऊपर, it is binding on all the states. So restrictions, they are not limited to only Delhi, and adults, they tend to behave worse than children, bursting crackers galore with no thought of pollution. So behavioral aspect is very important. You need to understand the gravity of the problem. You need to understand your own responsibility. So individual level पे that is very important. Delhi में when we talk about the ban, so it has been banned up till 1st of January 2024. So implementation में obviously इस चीज को implement करने में बहुत बड़ा बहुत challenges and difficulties आती हैं. So awareness school level पे create करना important है. Children would obviously they would understand because जो mindset रहता है या they can like जो उनको बताया जाता है वो उसको easily grasp and समझ लेते हैं. उसको as a like question या उसको lightly नहीं लेते हैं. So somewhere that would play important role. And green crackers की हम बात कर चुके हैं, how that can also help. But यहाँ पे complete ban की अगर हम बात कर रहे हैं, so that's the thing. And apart from this, applicants जिन्होंने file किया था petition said that governments could not leave the responsibility of protecting the environment to individual citizens. So collective consciousness of society will be deciding the ultimate result of this. So state governments, they should take steps to minimize the air and the noise pollution, not only during festive seasons, but even otherwise also. So यहाँ पे भी long term perspective की बात की जा रही है. So this is going to be binding in all the states, including Rajasthan. So like any other important aspect you want to highlight over here? We have talked about conscious celebration of the festivals. So I think banning of fireworks will help to deal with the pollution in the future. मतलब कि happiness is important, but not at the cost of environment. Celebration is important, but that shouldn't be at cost of something. और wider level पे obviously public interest की आप बात करो तो सबकी health पे जो negative impact होगा, it shouldn't be at the cost of health. Then stubble burning पे भी Supreme Court ने बोला है Punjab neighboring states to stop stubble burning. So Punjab admitted in Supreme Court that it was one of the biggest contributors of stubble burning. And with this, states of Haryana, UP, Rajasthan, it is important कि we take adequate steps even there also so that वहाँ पे भी एक इतना बड़ा problem ना हो जाए. And pollution not a political game where one state shifts the blame to another depending on the ruling political dispensation. This basically pollution is a murder of health of the people. You see children Delhi suffering from the health issues. Time has come to do something yesterday rather than postponing it. So the problem requires immediate attention, monitoring irrespective of whether the जो weather है it improves or not. So long term measures are important. And देखते हैं लॉन्ग टर्म मेजर्स के पर्सपेक्टिव से और क्या मेजर लेवल पे स्टेप्स लिए बट जाए. आई थिंक मानसी जो क्रैकर्स वाले में कि बैनिंग इज नॉट द सोल्यूशन और दिस विल बी प्रूव्ड इन द कमिंग ऑफ द दिवाली. इट इज जो सोल्यूशन होगा वो अल्टरनेटिव से होगा, हमेशा से रहा है ऐसे. बैनिंग इज नेवर सोल्यूशन. हाँ मतलब कि एनीथिंग, दोनों ही अल्कोहल हो गया, हाँ, टोबैको हो गया, कोई भी चीज को भी दोनों बैन ही नहीं कर सकते आप, हाँ जो रेगुलेट कर सकते हैं. कन्वेंशनल कन्वेंशनल जो फायर क्रैकर्स है उनका कंप्लीट बैन इंपॉर्टेंट है. ऑल्टरनेटिव हम लेके आए हैं ग्रीन क्रैकर्स, आप उनको यूज कर सकते हो. बट इवन ग्रीन क्रैकर्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी वहां पे भी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो कन्वेंशनल क्रैकर्स है उनको ही सेल किया जा रहा है. सो फेक ग्रीन क्रैकर्स भी एक प्रॉब्लम है. और बिहेवियरल एस्पेक्ट यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है. इंडिविजुअल लेवल पे अगर आपको एक्चुअली बैन करना भी है तो वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, वो सबसे बड़ा चैलेंज है ना. अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज को बोल भी रहा है तो स्टिल कैसे इम्प्लीमेंट करोगे आप इसको, मतलब. तो इम्प्लीमेंट करना चैलेंज है इसमें, क्योंकि हम्म, एक तो है कि आप पहले आप इंडस्ट्री को खत्म कर दो. जो 6 to 7 thousand करोड़ का इंडस्ट्री है तमिलनाडु में, उसको आप खत्म करो. जो एमएसएमई सेक्टर है वो अपने एसएसजी ग्रुप है, सेल्फ हेल्प हम्म, ग्रुप है, इसमें अधिकतर महिलाएं काम करती है इंडस्ट्री में.
फायर वर्क्स, वो आप तोड़ सकते हो। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट एरिया है यहाँ पर कि आप कोटा कर सकते हैं कि हर एक आदमी सिर्फ कम क्रैकर्स को यूज कर सकता है, ऐसा कर सकते हैं, नहीं, लेकिन जो औषध मुझे कम लगता है। क्रैकर्स यूज करने के बाद भी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी है ना एयर पॉल्यूशन की। एयर लाइक पोल्यूशन बेनिफिट क्रैकर्स तो सिर्फ 2-3 का है ना, ओवरऑल इंडिया में जो है होता है वो तो और भी रीजन कारण है, मतलब कि स्टबल बर्निंग है, सीजनल एयर पोल्यूशन। जो स्टबल बर्निंग होती है, पराली से होता है, वो इसी टाइम पे होता है, सेम टाइम पे जो विंटर है इसलिए वो सब आती है, उसी टाइम पे एक्सीड हो जाता है। दिवाली आती है, तो पानी इसलिए के- सारी चीजें हम्म घूम फिर कर उस चीज के ऊपर आ जाती है, क्रैकर्स के ऊपर। पर क्रैकर्स तो पूरे साल होते हैं ना, तो जो चीजें सिर्फ इस टाइम पर लिमिटेड चीजों के ऊपर अप्लाई की जा सकती है, वो पूरे साल भी तो अप्लाई की जा सकती है। और इवन या फिर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो कुछ भी है, वो व्हीकल के साथ साथ पूरे ईयरली अप्लाई किया जा सकता है। जैसे म्यूनसिपालिटीज और जो पंचायत होती है, उनके पास ऑप्शन होते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन साइड होती है उनके ऊपर ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है तो ग्रीन कारपेट या फिर वो लगा देती है, और उनसे वो पूरे साल किया जा सकता है, जिससे जो इस टाइम वाला पीरियड है उसमें इतना ज्यादा इफेक्ट देखने के लिए ना मिले। और सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया की वजह से तो नहीं होता, आसपास के एरिया पे भी तो ध्यान दिया जा सकता है, जहाँ की वजह से वो इतनी हाँ वही चीजें दीदी, वही बताना चाह रहा हूँ बढ़ा कि जाती, बढ़ आई जाती थिंक देखना होगा कैसे इम्प्लीमेंट होता है, बस। हाँ इम्प्लीमेंट, हाँ वही मतलब आप लोगों को आपको ये फाइन चीज करोगे, आप जेल में तो- भेजोगे क्रैकर के लिए, यही एक अब सोल्यूशन हो obviously सकता है वो चीज तो नहीं होगी, हाँ वो कि तो नहीं ऑन द होगा। स्पॉट। हाँ। हम्म और मानसी, जो आप बोल रहे हो बिहेवियरल रिवोल्यूशन लाओगे, हम्म कैसे लाओगे? आप एक थोड़ा एग्जांपल देके बताओगे क्या करोगे? आप लेवल की इंडिविजुअल बात आप है, क्या करोगे प्राइमरी solution के लिए? प्राइमरी स्कूल लेवल एजुकेशन में अगर आप बच्चों को ये चीज बताओगे तो वो कहीं ना कहीं पूरी फैमिली में एज अ लाइक अब बोलते हो जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन होता है वो होगा, क्योंकि कहीं इसके ना अलावा कहीं बच्चे भी पेरेंट्स को बोलते हैं ना कि आप क्यों फायर क्रैकर बर्स्ट कर रहे हो, इससे एयर पोल्यूशन होता है, तो वो कहीं ना कहीं इसके कहीं अलावा तो आपके माइंड में कुछ तो इम्पैक्ट लेके आएगा। नहीं, इसके अलावा पूछ रहा हूँ मैं। ये तो चलो ठीक है, स्कूल में बता दिया। इसके अलावा इसके अलावा वो नॉर्मल मेजर्स ही हैं कि आप सोशल मीडिया पे कर सकते हो, और तो इसका कुछ मेरे को ऑल्टरनेटिव नहीं समझ में आता है। है। नॉर्मली जो अवेयरनेस के ऊपर ये सारा आप और तो क्या कर सकते हो। नहीं है, उनकी जो स्मगलिंग हो रही है इतने, लास्ट कल के न्यूज़पेपर में भी था कि वो काफी ज्यादा इलीगल वे में सप्लाई हो रही है, उनके ऊपर कंट्रोल किया जा हाँ सकता है वो कि चीज तो हो ही वो रहा चीजें ना है। हाँ मतलब वो तो ग्रीन क्रैकर्स के केस में भी हो रहा है ना कि आप उसमें ग्रीन क्रैकर वाले जो पैकेट्स है, तो इसलिए बोला जा रहा है जो ग्रीन क्रैकर्स उनका एक प्रॉपर जो स्टैंडर्ड सिंबल है, आपको वो पता होना चाहिए, तो वहां पे भी अवेयरनेस जनरेट ही कर रहे हैं हम सोशल मीडिया के थ्रू। देखिए, एक तो सिंपल से बात है इसमें कि क्रैकर्स जो है वो तो सप्लाई रहेगा ही। रादर अगर इंडियन इंडस्ट्री खत्म होगा, ये तो चाइनीज इंडस्ट्री का डोमिनेंस बढ़ जाएगा। अगर आप इलीगल कर दोगे क्रैकर्स को तो इंडियन इंडस्ट्री खत्म, क्योंकि उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा। और जो इस स्मगलिंग ऑफ द चाइनीज इंडस्ट्री है क्रैकर्स का, वो डोमिनेट करेगा आने वाले समय में इंडिया भर में। उनकी शादी के समय में होता है, छठ के अभी भी समय में करता है, होता है। अभी भी करता है, हाँ, क्या हुआ? अभी भी करता है, अभी भी हाँ करता है अभी वो भी चीजें। करता है, तो हो ही रहा है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट मेरे इंपॉर्टेंट है, अगर बैनिंग द सोल्यूशन, तो फिर तो बिहार में अल्कोहल मिलना ही नहीं चाहिए था, ना गुजरात में मिलना ही नहीं चाहिए था, या फिर टोबैको या marijuana नहीं मिलना चाहिए था। तो आई थिंक रेगुलेशन इज ऑलवेज अ सोल्यूशन। रेगुलेट I कैसे करोगे, think कम I रेगुलेट कैसे करोगे? appreciate Oshik's innovative solution that we should have some sort of quota like thing, कि आपको मिनिमम दे देंगे, आप मैक्सिमम नहीं कर सकते। ऐसा होता है कि भर भर के आप 50-50 हजार के पटाखे खरीद लेती है फैमिलीज। तो दैट इज द कंसर्न। एक दो पटाखे छुड़ाने से या फिर फुलझड़ी जलाने से इतना पोल्यूशन नहीं होता है। हाँ उसमें भी स्पेसिफिकली ग्रीन क्रैकर्स ही फिर प्रमोट करके जाने चाहिए, जो आप इंडस्ट्री को बोलो कि इंडस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी तो इंडस्ट्री को फिर ग्रीन क्रैकर्स ही सिर्फ प्रोड्यूस करने चाहिए, इंडस्ट्री नहीं, हम खत्म लोग हो देश में हर चाइना जगह भी में बोल कोटा रहा है, डालते हम ही है। चाइना को नहीं बोलेंगे तो ना कि आप मत बनाओ, इसमें क्या नहीं कन्वेंशनल बोलेंगे मत कभी। बनाओ आप। हाँ तो वो चाइना से नहीं हो। चाइना से सामान आता है, स्मगल होता है। आप चाइना को बोलोगे कि मतलब हमारे यहाँ दिवाली पे पोल्यूशन होता है भाई, और आप जो है इनको बंद करो, हाँ लेकिन तो क्यों स्मगलिंग तो इंडियन इम्पोर्ट लोग करेंगे करवाएंगे हम तब भी। चाइना, वो तो एक प्रॉब्लम है ही, हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस है इन चीजों के लिए। टॉयज के केस में हम बात करते हैं, या इवन जब काइट्स फेस्टिवल होता है तब भी हम बात करते हैं, तो क्यों हम चाइना से इम्पोर्ट करेंगे अगर हम ग्रीन क्रैकर्स प्रोडक्शन में सफिशिएंट हो जाएंगे। तो आई डोंट सपोर्ट दिस थिंग, जो इलीगल एक्टिविटीज है उसको कर्व करने के लिए बाकी स्टेप्स ले सकते हैं, बट इलीगल एक्टिविटीज भी इसको कम्प्लीटली रिप्लेस तो नहीं कर सकती ना। आई थिंक वी शुड मूव फ्रॉम। हाँ वी फॉरवर्ड डीप फेक्स हम बात कर चुके हैं कल, जो इंसिडेंट आया है सामने,
Indian IT rules 2021, IT Act 2000 that we have, and Ministry of Electronics Information Technology that is also looking into this thing. Section 66D of the Information Technology Act, online impersonation is illegal under this particular section. 7.5 million new cases of TB in 2022 according to WHO global report. So TB एक bacterial disease है, tuberculosis and उसमें 2-3 important एलिमेंट है इसमें। TB एक MDR हो गया, XDR हो गया, हाँ वो मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, और XDR TB वो हो गया। और फिर निश्चय पोर्टल है जिसमें सरकार टीबी के जो पेशेंट है उनको सहायता देने के लिए करती है, निश्चय पोर्टल। और इंडिया का और जो फिर target है, that is हाँ 2025 लॉन्ग टर्म में कि eliminate. जो वैक्सीनेशन है, मतलब लॉन्ग टर्म में जो प्रिवेंटेबल डिजीजेज है तो उसको हटा सकते हैं। इससे रिलेटेड और आता है, जैसे XDR TB से रिलेटेड NTD आता है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, हाँ वो भी कहीं ना कहीं कनेक्शन रहता है इससे, तो हम लोग को काम करना चाहिए इसके ऊपर। तो बेसिकली कोविड पीरियड के बाद से इसका केसेस बढ़ा है, बिकॉज जो लंग का जो इन्फेक्शन है जो कोविड के समय हुआ था उससे वीकेन हुआ था लंग, और उसके बाद फिर टीबी का केसेस बढ़ा उसके। तो इस तो एक TB कम्युनिकेबल डिजीज औशिक? यस, हाँ मतलब एयर के थ्रू वो इजिली स्प्रेड हो सकता है। डिपेंड करता है कौन सा टीबी, वो हाँ भी डिपेंड वो करता भी है। है। हाँ ऊपर करें एक बार, ऊपर कर दें, हाँ, ऊपर ऊपर एक और, हाँ। ये TN पॉल्यूशन कंट्रोल बॉडी अर्जेस पीपल टू बर्स्ट ग्रीन क्रैकर। तो TN बताते हैं कि आप ग्रीन क्रैकर को यूज करें, जैसे हमने बताया था पहले कि ग्रीन क्रैकर करने से सही सही रहेगा। क्योंकि ग्रीन क्रैकर्स में जो बाय प्रोडक्ट रहता है वो सिर्फ वाटर वेपर्स है, सो उससे कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। सो दैट इज द थिंग। सो इंडस्ट्री में भी आप ग्रीन क्रैकर्स बनाओ, कितने बनाने हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है कि पूरी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। देन so NATO declares formal suspension of the Cold War era security treaty, which was the treaty of conventional armed forces in Europe. It was aimed at preventing Cold War rivals from massing forces at or near the mutual borders. So 1990 में इसको साइन किया गया था. So Russia has pulled out from it, and that is why even ये decision भी लिया गया कि इसको suspend कर दिया जाना चाहिए. Mansi, can you please scroll the page a little more? Okay, on the previous page. Yeah, exactly. Yeah. Oshik, what is your stance on this statement? Not the time for elections, but the time for defense. Zelensky. What do you think? Is the Zelensky trying to create a umbrella of defense to subjugate the elections? Basically, Ukraine is facing Russia in the war, and during the time of emergency, he is saying that this is not time of election, but for time of defense against Russia, for incorporating the help from the NATO and European Union. And I think, like Israel, there should be a umbrella umbrella polity to include both opposition parties leader and also the government party. They can coordinate with So if this each other war in the policy. continues for 10 years, let's suppose, so there will be no elections, this means. नहीं डिपेंड करेगा 10 years I में भी think सिचुएशन तो सेम नहीं रहेगी ना जो आज के टाइम में है, इवन इफ द वॉर गेट्स प्रोलॉन्ग्ड. सो दैट्स व्हाट आई फील कि मतलब व्हाट इज द राइट टाइम फॉर हैविंग द इलेक्शंस. मतलब आज के टाइम में जो औशिक ने बोला कि इमरजेंसी टाइम्स में इट कैन बी डिलेड, बट कब तक डिले किया जाएगा उसमें आप यूनिलेटरली इस डिसीजन को ना ले, आप ऑपोजिशन पार्टीज को भी इसमें कलेक्टिवली ले कि क्या मतलब अल्टीमेट डिसीजन होना चाहिए, कब इलेक्शंस होने चाहिए. yes, Master.
सो इरैशनल इम्पोर्ट्स, तो अगेन अभी हम बात कर रहे थे फायर क्रैकर्स की भी, इलीगल इम्पोर्ट स्मगलिंग चाइना से हो सकती है, जो इवन लाइक ऑफिशियली भी हो रहा है इम्पोर्ट, तो उसमें भी क्या कुछ इरैशनल इम्पोर्ट हम कर रहे हैं. सो गोयल द मिनिस्टर सेज कि स्टील फर्म्स टू ब्लो विसल ऑन द इरैशनल इम्पोर्ट्स. तो स्टील इम्पोर्ट्स की बात करें, इंडिया की स्टील इंडस्ट्री, there's a report on any instances of end users relying on irrational steel imports to government and assured multi-pronged battle. It is being waged to address concerns arising from the Europe's proposed carbon tax on imports. तो one of the possible जो major impacts देखने को मिलेगा वो steel exports के ऊपर देखने को मिला इंडिया की तरफ से. So let me know if anybody is continuing to import the steel available in India at competitive prices irrationally, so that we can work together to ensure that irrational exports do not sully the Indian manufacturing demand. Let the industry grow. So free trade agreement, maybe this is going to be one important aspect, steel sector. एंड जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है उसकी हम डिटेल में बात कर चुके हैं, जो ऑब्वियसली यूरोप वुड बी कमिंग अप विद दैट. दिस वुड बी इम्प्लीमेंटेड और इट वुड कम इनटू फोर्स फ्रॉम 2026. सो दैट्स देयर. And we have a SIMS project, that is a Steel Import Management System, which is a project of Minister of Commerce and Industry and implemented by the DPIIT. Okay, एक और concern, although we have like launched this production linked incentive scheme कि additional output के ऊपर, incremental output के ऊपर आपको financial incentive दिया जाएगा. But semiconductor production linked incentive scheme की अगर हम बात करें तो almost 80% जो funds हैं they remain unused. So ultimate जो purpose है वो ही नहीं fulfill हो पा रहा है. So it's important the funds they are used जहाँ पे यूज किए जाने चाहिए, so that domestic manufacturing important जो है उसको boost मिल सके. Actually में $8 billion of the $10 billion allocated by Center for the Production of Semiconductors PLI is unused. So we are trying to transition to a stronger manufacturing base through schemes like PLI. And semiconductor chips की अगर हम बात करें तो here we have the डोमिनेशन ऑफ दी चाइना से इंपोर्ट करते हैं, या इवन बात करें ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है. देन फैब यूनिट्स पे भी हम कंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, एंड ये जो चिप्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं एज रॉ मटेरियल्स. दे आर यूज्ड इवन इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑल्सो. सो वी सॉ कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जो वेटिंग टाइम था वो इंक्रीज हो गया था बिकॉज ऑफ अगेन सप्लाई डिस्ट्रप्शन ऑफ दी सेमीकंडक्टर चिप्स. So that is why we're focusing upon the domestic self-reliance. So we have the Committee on Cotton Production and Consumption. So they have estimated जो cotton production है during the current season जो है between October to September, this year's October till September 2024. So this is the entire cycle or duration अब बात करें. And जो प्रोडक्शन है दैट इज रिकॉर्डेड 316 लाख बेल्स अगेंस्ट 336. सो रिडक्शन देखने को मिला है. टोटल कंजम्पशन टेक्सटाइल मिल्स में एक्सपेक्टेड टू बी लोअर देन एक्सपोर्ट्स आर लाइकली टू बी at this much level. Production has been affected by जो pink bollworm और inadequate monsoon की वजह से production of cotton has been impacted. Climatic conditions में we can look into और क्या climatic conditions important है for cotton. And cotton prices, they are on par with the international prices. So internationally competitiveness में is not a roadblock or a challenge. International prices अगर decline होते हैं तो Indian cotton will become expensive. तो तब problem हो सकती है. So this is going to impact the domestic textile industries. Okay, Ashik, we can move on to Indian Express. Okay, Masi. Now starting with the Indian Express newspaper.
SC has given direction to the states around Delhi to stop crop burning. Long-term plan to will follow. तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि what are the long-term measures यहाँ सुप्रीम कोर्ट to ने move बोला away है from that कि development. SHOs को आप रिस्पॉन्सिबल बनाइए इस चीज को अगर इम्प्लीमेंट करना है अंडर द चीफ सेक्रेटरी. Second would be the Glenn Maxwell. He has scored 200 more than 200 runs to win the match against Afghanistan. Australia lost 7 wickets at 97-92 runs, and Glenn Maxwell individually showcased a spirit of dedication and never die attitude to win the match. Ultimately, तो हम लोग सीखना चाहिए इससे. Depression low to double ton high. After Praganand is basically the child prodigy to win. Abhi win नहीं. He represented India in chess championship in the World Cup. उसकी जो बहन है वो भी चेस खेलती है. So he is following him. Okay. So like Pragananda, after he lost the match, जो final match था, he said कि I always observe या I try to identify कि opponent किस तरीके से सोचता है, मतलब what made him win, how he was different from me, मतलब वो क्या different चीज सोच रहा था. तो even like इसको हम generally भी apply कर सकते हैं in any particular field. हाँ, क्योंकि ओपोनेंट के जो थिंकिंग पैटर्न है वो डिसाइड होता है कि गेम कैसे चलेगा ओवरऑल. तो the ability to predict someone's thinking and their mind makes you feel more powerful or more in a superior position in chess match. तो वैसे ही इसको अप्लाई कर सकते हैं बाकी चीज़ जैसे आपने. यहाँ लिखा हुआ है कि एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव ऑर्डर्स हैव बीन इशू टू रिस्टार्ट द स्मोक टावर. अब स्मोक टावर खरीदा गया था 5 करोड़ से ऊपर रुपीज में, 5 to 20 करोड़ के बीच में था, एंड इट वाज शट डाउन. इसको यूज नहीं किया गया था. तो सीएम कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि सस्पेंड आईएएस अफसर ओवर स्मोक टावर शट डाउन. तो क्यों किया गया जबकि दिल्ली में पोल्यूशन अभी भी है? तो इसका मेंटेनेंस के लिए कॉस्ट या फिर जो पेयर है इट विल बी बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तब भी इसको क्यों बंद किया गया? वो एक इशू है इसमें. तो बोला जाता है कि क्योंकि इसका जो एफिशिएंसी था वो बहुत कम था एज पर द डेटा जनरेटेड बाय आईटी बॉम्बे, इसलिए उसको शट डाउन किया गया था. लेकिन फिर अभी जो क्लैश है, पॉलिटिकल क्लैश की, इसको क्यों बंद किया गया था उसी के ऊपर. वैसे स्मोक टावर जो यहाँ यूज होता है और जो चाइना में यूज है वो डिफरेंट है हाँ एज कम्पेयर टू दिल्ली. मतलब वहां पे तो चाइना में तो इट हैज बीन सक्सेसफुल, बट इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो पाया, मतलब दिल्ली एनसीआर में क्यों नहीं हो पाया. तो मतलब जो साइज नेक्स्ट है. आर्टिकल Next article is talking about the breaking hierarchy. At his government school, principal, staff and students sit on the floor for interactive session. तो जब स्टूडेंट नीचे बैठते हैं, और इसमें तो पहली बार स्टूडेंट और प्रिंसिपल स्टाफ सबको एज उनका ज़्यादा है, तो आई थिंक दिस इज ए पॉजिटिव स्टेप. जहाँ पर कम एज होता है केजी, वहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि डिसिप्लिन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अर्लियर ग्रोथ ऑफ द चाइल्डहुड. लेकिन यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, उससे एक इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और एक इंटरैक्टिव सेशन पढ़ सकता है विथ फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज फ्रॉम बोथ द साइड्स. प्रवेश मानसी कुछ कहना आपको नहीं यही इसके है हिसाब से? आवश्यक कि मतलब ठीक है. शोइंग की. हाँ आदित्य L1 मिशन, प्रवेश है क्या ये? दिस इज सोलर मिशन. मतलब थोड़ा डिटेल में, थोड़ा डिटेल में. ठीक है. तो बेसिकली इट इज द सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन है, एंड इट इज एन इंडिजिनसली बिल्ट मिशन.
और इसको and it will वन पॉइंट पे high क्यों? मैं बताता हूँ, मैं ऐड करता हूँ इसमें कि बेसिकली एवरीवन इज गोइंग आफ्टर द सन। क्यों सन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सोलर फ्लेयर जो उसमें से आता है कुछ फ्रॉम द कोरोना स्फीयर, it impacts the satellite in the earth atmosphere and also the communication devices that are placed in the atmosphere. तो उसको इम्पैक्ट को स्टडी करने के लिए आदित्य एल 1 मिशन भेजा गया। अब वैसे ही नासा में नहीं भेजा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा नाम, अगर मानसी अगर नहीं, आई ऑल्सो नासा कौन सा मिशन राइट नाउ। तो देखना पड़ेगा। तो बेसिकली आदित्य L1, तो आदित्य का 5 मिशन है, आदित्य L1 L2 L3 L4 L5। तो L1 जो है बेसिकली एल से मतलब होता है लैग्रैंड पॉइंट। लैग्रैंड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर अर्थ का ग्रेविटी और सन का ग्रेविटी कैंसिल ऑफ ईच अदर, और वहां स्टेबिलिटी रहता है सैटेलाइट का। तो वहां से ऑब्जर्व किया जाएगा सन का कोरोनोस्फेयर और जो सोलर फ्लेयर है, और उससे एक तरह से इंडिया को एक हेल्प मिलेगा कि एटमॉस्फेयर कैसा है सन का, सन के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगा, और कैसे इम्पैक्ट करता है सोलर फ्लेयर, वो और उसके बारे में also जानकारी एक और मिलेगा। चीज है तो यहाँ हेल्प। पे, जो हाँ। टेम्परेचर अनोमली की हम बात करते हैं स्पेसिफिकली सन के कॉन्टेक्स्ट में, कि जो सन का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई है कंपेयर टू द टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ द सन। तो ये जो टेम्परेचर अनोमली है इसको भी स्टडी करने के लिए कि ऐसा क्यों है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। हाँ। यस। और L1 पॉइंट से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं आएगा, लाइक when it comes to observing the sun, so there cannot be any obstruction. यहाँ लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ फेज 1। अभी जो इलेक्शन चल रहा है छत्तीसगढ़ इस साल इलेक्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान रीजन में, और वहां का टर्नआउट था इन द मोस्ट वायलेंस 71%। दिस ऑल्सो शोकेसेस द वीटो पावर थ्रू यूज ऑफ वायलेंस बाय द सीपीआई मॉइस्ट, और कैसे हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है और होम मिनिस्ट्री है कैसे काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द लोकल पुलिस अथॉरिटी टू डील विद द सेपरेट नक्सलिज्म इन दिस रीजन। फॉर एग्जाम्पल दांतेवाड़ा एंड भानुपुर दो सीट है जहां पर पोलिंग ज्यादा देखा गया है, 62% से ऊपर है। तो ये एक अचीवमेंट दिखाया जाता है कि इंडिया डेमोक्रेसी, और कैसे एक ग्रासरूट लेवल पर काम करने से इन स्पाइट ऑफ boycott called by the Naxal parties, the people have voted in a large number. तो एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसको ले सकते हो। ठीक है। मिजोरम में भी 76% टर्नआउट हुआ। To take schemes to target the audience, government to advertise on the social media. How government ad is spended on? It has dipped. कैसे डिप्ट हुआ है? अप्रोक्सीमेटली 1200 करोड़ 5 साल पहले था, आज 400 करोड़ के आसपास है। और देखा गया है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी हो गया या फिर वहां पर ज्यादा स्पेंडिंग था, तो 514 करोड़ था, अभी घट के 155 हो गया। और अगर प्रिंट मीडिया में देखा जाए तो 429 था, अभी घट के 220 हुआ। आउटडोर पब्लिसिटी मतलब पैम्फलेट हो गया या फिर आप होर्डिंग हो गया, वो सब 235 था, वो घट के 32 हो गया। और सबसे ज्यादा जो हो रहा है आजकल वो सोशल मीडिया की तरफ से हो रहा है। तो हम लोग ये भी बात कर सकते हैं कि सोशल मीडिया का आने वाले समय में, जो कल भी बात होता है सर के साथ कि ओपिनियन हो गया, या सोशल मीडिया का जो रूल है, जो रूल करेगा आने वाले समय में पब्लिक डायस्पोरा में और एक माइंड पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए भी द गवर्नमेंट इज रीचिंग आउट टू द सोशल मीडिया कंपनीज फॉर द एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी कैंपेन। और ये सबके साथ हो रहा है, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी एक्सेट्रा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी वो भी कर रही है, अपना पार्टी भी, और साथ ही गवर्नमेंट भी कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हम लोग को चाहिए एक ऐसा रेगुलेशन सोशल मीडिया के लिए ताकि डिस इंफॉर्मेशन फैले नहीं, हेट स्पीच नहीं फैले एज कम्पेयर टू। And we can also look तो into the Central Bureau of Communication also, so composition and nature can be checked. हाँ, प्रेरणा यू कैन टेक अप दिस वन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, उसका मैंडेट क्या है? ऑड इवन बात कर लिए, कौशिक फिर को डीप फेक बात कर लिए। हाँ ये, हाँ ये तो स्टडी इन द स्टडी। हाँ ये लेते वर्डली वाइज
इट्स बेटर टू फेड अवे लाइक एन ओल्ड सोल्जर देन टू बर्न आउट। प्रवेश आप बताइए इसका, फिर मानसी बोली फिर मैं बोली। जॉन लेन का एक कोट है, इट इज बेटर टू फेड अवे लाइक एन ओल्ड सोल्जर देन टू बर्न आउट। बोले मानसी। मैं ये बोलूंगी औशे कि आप इसमें बर्नआउट वर्ड को कैसे इंटरप्रेट करोगे, तो लाइक एक नेचुरल जो यू नो आइडल तरीका होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फेड अवे। सो जो आप कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हो, सर्विस दे रहे हो टू अ नेशन एज अ सोल्जर, सो आपको उस चीज को बोस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर यू शुडंट, दैट शुडंट इम्पैक्ट योर पर्सनालिटी। यू नीड टू लाइक, आपने सर्विस दे दी आफ्टर रिटायरमेंट, आप अगर अच्छे और तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो सोसाइटी में, सो साइलेंटली यू शुड डू दैट, यू शुड कीप योर सेल्फ इन्वॉल्व इन दैट, रादर देन बर्निंग आउट को मैं ऐसे करूंगी कि बोस्टिंग योर ओन कि आप सोल्जर थे, आपने ये लड़ाई जीती, वो किया। सो वो नहीं होना चाहिए। ठीक, एंड मैं ऐड आप करूँगा इसमें। ओल्ड हाँ सोल्जर को बोलिए। बस मैंने एक पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट किया कि सोल्जर के पर्सपेक्टिव से, आप इसको डिफरेंट प्रोफेशंस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का। आजकल देखा जाता है कि 75-85 ईयर्स के बाद भी लोग पॉलिटिक्स में ज्वाइन करते हैं, और उनको एक कीन होता है विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल पावर और बाकी से। हम्म। तो इट इज फेड बेटर तो फेड अवे लाइक एन ओल्ड सोल्जर। आप काम किए 30-40 साल, आप दिए सर्विस दिए, उसके बाद आप बर्न आउट हो जाए। बर्न आउट मत होइए, मतलब कि आप चल जाइए, रिटायर ले लीजिए पॉलिटिक्स, लेकिन नहीं, आजकल 85 ईयर्स में भी आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है या फिर होम मिनिस्टर बनना है। तो आई थिंक द मोर यंग ब्लड 50-55 ईयर्स को एज को मिलना चाहिए। जैसे आप यूएस में देखा जाता है, जो बिडेन 75-75 हो सकते हैं, हो गए हैं, लेकिन तब भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं प्रेसिडेंट में। तो आई थिंक मोर यंग ब्लड शुड बी प्रमोटेड। तो ये एक एस्पेक्ट हो सकता है। दूसरा, एक कॉम्पिटिटिव जो स्पिरिट है विथ रिस्पेक्ट टू इंटर कम्युनिटी। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन इन सोसाइटी, ज़्यादा से ज़्यादा एक डिमांड है कंपटीशन विद रिस्पेक्ट टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो ये एक हद तक ही कर सकते हैं, और इसको आप मैनेज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग ऑफ इकोनॉमिक पाई और सोशल मेजर। उसके बाद आप नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर आप बर्न आउट हो जाएंगे, क्योंकि फिर सोसाइटी का डिसइंटीग्रेशन हो सकता है लॉन्ग टर्म में। तो वो भी एक एक बात है कि ज़्यादा फोकस नहीं करना है कोई चीज़ पर। तो जो बुद्धिज्म का जो कॉन्सेप्ट है कि मध्यम मार्ग, कि ज़्यादा काम नहीं करे, 72 वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। हम्म। 70 आवर रूल है वो भी सही नहीं है, 40 आवर रूल सही है। ऐसे करके इसको डिफरेंट एरियाज में इंटरप्रेट कर सकते हैं। यस। अगर हाँ, कर सकते हो, तो इंटरप्रेट एज एन हम्म, एक सोल्जर आप डिफरेंट प्रोफेशन में। अब steady in a changing world, despite several challenges, Indian economy has been resilient. India has shown approximately 7.8% growth, and PMI जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, जैसे जो स्टार्टिंग गुड्स होता है, जो इन्वेंट्री में होता है, उससे रिलेटेड होता है परचेजिंग मैनेजिंग मैनेजर इंडेक्स, की इन्वेंट्री में कितना गुड्स है, ज्यादा गुड्स है पहले के मुकाबले कम है। ये मानसी। राइट। ठीक है। फिर तो वो भी दिखा गया कि एक तरह से एक्सपेंशन, स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन जोन में है, एट कॉन्ट्रा इन कॉन्ट्रास्ट टू वीक मैन्युफैक्चरिंग। तो देयर इज अ हेल्दी कॉर्पोरेट सेक्टर बैलेंस शीट एंड वेल कैपिटलाइज्ड बैंक। बैंक का भी बैलेंस शीट सही है और कॉर्पोरेट का भी बैलेंस शीट सही है। इन स्पाइट ऑफ वर्ल्ड में जो चेंजेस आ रहा है ओवरऑल इन द इकोनॉमी, स्टैग्नेशन, जीडीपी स्टैग्नेशन, जर्मनी का नेगेटिव ग्रोथ है, हम्म। यूएस का भी इन्फ्लेशन रेट हाई है, उसके हिसाब से इंडिया भी सही जगह पर है। क्यों? ये लिखा हुआ है इन्फ्लेशन रिमेन डोमिनेट कंसर्न वर्ल्ड वाइड। वहां पर भी हाई इंटरेस्ट रेट हो रहा है, लेकिन इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है वो बेसिकली बैलेंस्ड फॉर्म में है, कि टू सपोर्ट द क्रेडिट फ्लो ऑल्सो एंड टू ऑल्सो मेंटेन द इन्फ्लेशन। तो अ, वही बात है कि ये रशियन यूक्रेन वॉर हो गया, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसके कारण भी जो रिपरकशन सोसाइटी के अंदर में उसको मैनेज किया जा रहा है। क्रूड ऑयल प्राइसेस को भी मैनेज किया जा रहा है। और
और बैंकिंग सेक्टर रेजिलियंस की भी बात हाँ कर सकते हैं स्पेसिफिकली कि हाँ यूएसए में हमने देखा बैंक्स ऑफ फेल्ड, जो सिलिकॉन वैली बैंक था, बट उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर एक तो इतना नहीं हुआ, एंड ऑब्वियसली ये शो करते हैं कि हमारे बैंकिंग सेक्टर की कितनी लिंकेज है विद द ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम। सो वो जितना ज्यादा अगेन रेगुलेटेड तरीके से हम उसको मेंटेन करके चल रहे, सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग विच keeps or makes our banking system also resilient and robust. So हाँ। और these दूसरा देखा गया है कि वर्ल्ड वाइड जो शिफ्ट इन ग्लोबलाइजेशन हो रहा है फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज टू द एशियन पैसिफिक कंट्री, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन हो रहा है विद द कमिंग ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजी सच एज एआई, रोबोटिक्स एक्सेट्रा, क्लाइमेट एक्शन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, देयर इज अ इंक्रीज ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट टुवर्ड्स द यूरोपियन कंट्रीज। तो देयर इज अ चेंज इन वर्ल्ड ऑर्डर। वहां पर इंडिया का क्या काम है? सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन हर चीज में, क्रूड ऑयल में, या फिर इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजीज सच एज पीएलआई स्कीम इन इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। तो हर एक चीज में इंडिया इनपुट कर रहा है और फिर यूनिक चैलेंजेस जो भी है वो भी फेस करेगा। तो क्या क्या प्रॉब्लम है, चाइना में प्रॉब्लम बात करते हैं यहाँ पर। हाँ बोलिए। मैं कह रही हूँ चाइना में भी स्लो डाउन आ रहा है, तो इसलिए इंडिया एक और मतलब एज एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन इज, जो ऑल्टरनेटिव है इन्वेस्टर्स के सामने, दैट इज इंडिया। लाइक आप उसको हाँ। मार्केट पर्सपेक्टिव से देखो या हम्म। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ चीप स्किल लेबर के पर्सपेक्टिव से देखो, सो दैट्स देयर। तो इंडिया में दो चैलेंजेस सामने में, एक है कार्बन इंसेंटिव सोसाइटी है, सोसाइटी इकोनॉमी है क्योंकि कोल पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है, और सेकंड वुड बी द लेबर इंटेंसिव है, और उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन रेट है 17.5% कुछ है, वो बढ़ना चाहिए। तो ये 3 एरियाज पे काम करना होगा इंडिया को, तभी हम लोग चैलेंज को पावर कर सकते हैं। डी फेक का बात कर लिए थे कि कैसे यूज ऑफ एआई टू क्रिएट डी फेक, रश्मिका मंदाना का केस हुआ था हाल फिलहाल में, तो कैसे डील कर सकते हैं। और बेचलर डिक्लेरेशन क्या है? बेचलर डिक्लेरेशन इट इज साइंड बाय द 28 कंट्रीज, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, जापान, इंडिया, फॉर मोर regulation of AI and to stemming from the capability to manipulate the content and generate deceptive content, and call for global action to address the potential risk of stemming from AI। तो हाँ, for more regulation of AI ये बात हो रहा है इसमें। तो बेचलर डिक्लेरेशन एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हो गया। एलिमेंट है, इसको यूज कर सकते हैं। सिकनेस इन द एयर, ये भी हम लोग बात हमेशा करते हैं विद रिगार्डिंग टू द एयर पोल्यूशन और क्या करना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस फ्रॉम द अदर मेगा सिटीज सच एज बीजिंग, जकार्ता, मेक्सिको सजेस्ट द एयर क्वालिटी इज नॉट सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड एज गेमिंग मेजर्स। और इसको आप एक बार डिस्कस करो, मैं अगर देखता हूँ कुछ अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो। लाइक वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, एक तो पहले क्या फैक्टर्स, क्या रीजंस है व्हिच आर लीडिंग टू वर्सनिंग ऑफ द एयर क्वालिटी। सो वन तो एक नेचुरल फैक्टर हो गया कि जो टेम्परेचर डिक्लाइन देखने को मिलता है ड्यूरिंग विंटर सीजन, उसकी वजह से लेस इस टाइम पीरियड के दौरान हमें विंड स्पीड भी स्लो डाउन देखने को मिलता है। साथ ही साथ इंसिडेंट्स ऑफ स्टबल बर्निंग, जो व्हीकुलर डेंसिटी है इंडिया में, उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस दैट इज इंक्रीजिंग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में स्पेसिफिकली। then construction activities they remain unregulated। तो जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं दे कम इनटू फोर्स ड्यूरिंग दिस सीजन, जब ये प्रॉब्लम थोड़ी हमें दिखती है कि नाउ बेसिकली दिस इज इमर्जिंग एज अ प्रॉब्लम। सो शॉर्ट टर्म मेजर्स दिस वी हैव सीन के सुप्रीम कोर्ट भी हाईलाइट कर रहा है, स्टबल बर्निंग के ऊपर भी बोला है, क्रैकर्स के ऊपर भी बोला, द वे वी manner in which we celebrate the festivals also, so that needs to be in a conscious, in a sustainable manner। so मतलब मल्टीपल तरीके से वी आर लुकिंग इनटू थिंग। तो सबसे ज्यादा एक ही चीज निकल के आई है कि आपको लॉन्ग टर्म मेजर्स लेना इंपॉर्टेंट है इस चीज को, एक्चुअली वी वांट टू रियली मिटिगेट द इम्पैक्ट, बिकॉज हेल्थ इम्पैक्ट जो हो रहे हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो होंगे, लेबर प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, ऑल इन ऑल वो इकोनॉमिक ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, वेलफेयर को सप्रेस करेंगे। I think Mansi we can continue with the next video. Okay, yes, you're left with less time here.